Hello everyone, how are you all? I know that after such a long time we are using this method of videos, but unfortunately I have got examination at the same time when your class is there. Okay, so I have to go there and I cannot miss your revision at the same time. So I thought of finding the simplest way of sending the video. Okay, we'll continue the next part. Yesterday we have completed the derivation of this same topic. Today we will be doing the examples, that means numericals of this particular topic. Okay, so let's quickly continue, shift on to the question. So what exactly I'm planning today we'll be completing all the solved examples of the textbook, as well as some questions of law of conservation of momentum, which is extremely important for your syllabus. So let's see the first question, example number 9.1. Okay, we all know that force is equals to mass into acceleration is the only, maybe I can say, the formula in this topic. And second formula is about law of conservation of momentum, that we'll be discussing in the next part. So let's see. A constant force is acting on an object of mass is given. Quickly note down what is given. The duration time is given. I don't know why time is given, but still we'll note it down. Increases the object velocity from 3, matlab u is equal to 3 meter per second to v 7 meter per second. So just without any hesitation note down all the values, and let us afterwards see that how can we use it. And you are asked to find a magnitude of applied force. Okay, and if okay, first of all we'll complete that and then read the next part of it. Magnitude of force, that means I am asked to find a force. What I know is nothing but force is equals to mass into acceleration. The force is equals to mass into acceleration. Mass is 5, acceleration is not given. Instead of that I am given some values. So I know that acceleration is v minus u upon t, and now I can put the value force is equals to mass into v is 7 minus 3 upon 2. So very clear, 5 into 4 upon 2 is 2, so it is 10 Newton. Clear? तो ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया. नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, दैट मीन्स द टाइम इज इंक्रीज्ड. Okay, now the increase in the time. Okay, so what can I do? Again, I write the same formula, mass into acceleration is v minus u upon t, right? Force is applied, I think same force is applied. Now if the force applied for the duration, okay, force is same thing, 10 is applied for mass 5 kg, right? U is 3 meter per second. Sorry, it's v, right? V I don't know, v is the final velocity, u is 3 meter per second upon time is for 5 seconds, isn't it? It is applied for 5 seconds, so here raha time. So 5 and 5 is fortunately getting cancelled. I get 10 is equals to v minus 3. 3 can be shifted here. I get v is equals to 13 meter per second. So final velocity for in such case will be 13, of course, more than the previous one. So very simple. So very simple. Okay. So I hope your idea clear for this question. कोई भी doubt हो तो you can send that to me on the WhatsApp group, so that I will involve that, or otherwise I will send the another video, or I'll take the session or include that in the next session. Next one, let's go for the next example. Example number 9.2. Without any botheration, let's understand the question. I think it's an easy question. Which would require greater force of acceleration 2 kg, accelerating 2 kg for 5 meter per second. ये तो सिंपल सी बात है. फोर्स अप्लाई करना है, फाइंड करना है. तो F1 हम लोग फाइंड करते हैं mass into acceleration, m1 a1, that would be equal to 2 into 5, 10 Newton. And F2 we will find 4 for 2, so 4 into 2 it is 8. So F1 is greater than F2. Okay, the first one is greater than F2. तो वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.3. चलो कमन फटाफट से कंप्लीट करेंगे. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, है ना. तो व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या देखते हैं. 9.3. A motor car is moving with the velocity 108 km per hour. Moving. Okay, so is already moving. So I can consider that as v u 108 km per hour, which can be converted into 108 into 5 by 18. So it will be I know that the division 6 it would be 6 6 into 5 is 30 meter per second. If you're not able to do this division, 108 divided by 18, what you can do is you can go for dividing by 2 and then you can complete it. Okay, right? So 30 meter per second is nothing but my answer here. I mean to say the velocity here, right? Let's go for the next one. Let's see. It takes 4 seconds to stop. The time is given
4 सेकेंड एंड स्टॉप मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। देखो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको मिस नहीं करनी है, दैट ज़ीरो। Okay, so whenever it is going to start from the rest or it is going to rest at after some time, that means something is zero in it, remember that. Okay, after the brake is applied, calculate the force exerted by the brakes on the motor car if the mass is given, m is given equal to 1000 kg. So it's the same thing again, I have to repeat the same process. Force is equals to mass into acceleration, whereas it is equals to mass into acceleration क्या होता है, v minus u upon t. तो वही चीज़ है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज सेम। तो मास इज 1000, v इज 0 माइनस 30 अपॉन टाइम इज 4 सेकेंड। ओके, तो 4 आई थिंक यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। ओके, आई डोंट हैव टू टेल यू। सो 250 होगा, 4 होगा 250 एंड माइनस में होगा कुछ आंसर 250 इंटू 30, तो 7 माइनस 7500 न्यूटन। नेगेटिव में क्यों आया है? Because brake apply in the opposite direction to the motion of the car, that's why the force has come in negative. Okay, clear, simple है। hope कि answer is correct हो। yes, it is correct। चलो next one, what is the next one? 9.4, the force 9.4, a force of 5 Newton gives a mass of m1, a force of 5 Newton gives a mass of m1 and acceleration, हाँ आगे पढ़ ही नहीं रहा हूँ मैं। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो f इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, a इज नॉट given, a is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and m1 can we find out m1 here? Yes, we can find out. Force is equals to mass m1 into acceleration, force 10 है, force 5 है, आई एम सॉरी, force 5, mass m1 मालूम नहीं है एंड दिस इज 10, 10 कैन बी शिफ्टेड, m1 इज इक्वल्स टू 1/2, 5 अपॉन 10, 1/2 kg, of course kg. Okay, next one, and mass m2, this is the first situation. Second situation क्या है? mass m2 acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम force is 5 Newton, acceleration is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m2 I have to find out. तो force is equals to m2 into acceleration, force is 5 Newton, m2 I have to find out, acceleration is 20, तो m2 will be equal to 1/4 kg, of course, right? Okay, what will be the acceleration if both masses are tied together for the same force? So now I know the masses tied together मतलब m1 plus m2. So now the mass m is equals to m1 plus m2, which is 1/2 plus 1/4, which is 3/4, I believe, into 2 into 2, 2 plus 1, 3, isn't it? 3/4 kg. Now I know that mass is this, force is 5 Newton, so force is equals to mass into acceleration, implies it gives me 5 is equals to 3/4 into 2a, है ना? So I can shift this that side, I get 20/3 meter per second square. So that's the answer. Of course you can write the answer in the decimals, no problem, right? Hope it is correct. Don't know कहाँ है इस क्वेश्चन का आंसर, ऊपर होगा। yes, here it is, something 6.67, 3618, yes, 6.67। तो easy है, बहुत simple था, कुछ नहीं था। Of course we kept it in the fraction, that's why it was bit difficult, a bit easy. But if you convert into decimal, things become bit difficult. So of course at the end or last answer you can write it in the decimal if it is expected. Okay, this is velocity time graph, okay, of a moving object graph देखते हैं। ठीक है, पूछा क्या है? बॉल है, मास दिया हुआ है, पूछा क्या हुआ? हाउ मच फोर्स डज इट एक्सर्ट द बॉल कम रेस्ट। ओके, तो फोर्स कितना लगेगा? ओके, तो मास इज गिवन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। तो हाउ विल आई यूज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू फाइंड द फोर्स? तो फोर्स इज इक्वल्स टू 9.4 mass into acceleration, whereas force I don't know, I have to find out the force. Only mass I know, mass is equals to 20 gram. Using this graph, can I find out the acceleration? Come on, tell me. Using this graph, can I find out the acceleration? Yes.
तो आई नो दैट एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. Mass is 20. V, V is 0 because it comes to the rest, isn't it? It comes to the rest. तो 0 माइनस u is 20. इनिशियल वेलोसिटी प्लीज चेक, इट इज 20. टाइम, कितना टाइम लगा ये सब करने के लिए? 10 सेकेंड्स. तो ये रहा 10 सेकेंड. तो फ्रॉम द ग्राफ आई कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स एंड आई कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर. द आंसर इज 20 इंटू -2. तो इट इज गोइंग टू बी -40 न्यूटन. दैट्स इट. बिकॉज ब्रेक अप्लाई तो ये नेगेटिव ही होगा. माइनस, एक मिनट. हाँ, yes, we missed something here. I'll tell you what we have missed it. It is given in centimeter per second. Okay, you please check it. The velocity is given in a centimeter per second. I need to convert that into meter per second. Okay, so that's why I made a big mistake here. यही होता है, देखो. Okay, तो let's go for it. Velocity is 20. Initial velocity u is equal to 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में? सेंटीमीटर टू मीटर, स्मॉल यूनिट टू लार्ज यूनिट, डिवाइड बाई 100, राइट? तो 20 सेकेंड तो वैसे ही है, तो दैट्स नॉट, आई हैव टू चेंज. तो 20/100 मीटर पर सेकेंड. सेंटी को निकाल दिया और नीचे लगा दिया, बस दैट्स इट. तो इट इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड. तो आई कैन पुट दैट नाउ. 20 kg, 20 ग्राम दिया है ना. नाउ दैट इज अनदर थिंग, आई नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू kg, है ना. 20 ग्राम दिया है. 20 ग्राम कितना होता है? 20/1000 kg. 0 गॉट कैंसिल, 0.02 kg. तो मास विल बी इक्वल टू 0.02 इंटू वी. 0 स्टॉप हो चुका है, -0.2 अपॉन टाइम इज 10 seconds. ऑफकोर्स इट इज गिवन फॉर्चुनेटली इन द seconds. Okay, so I can easily get that 0.02 into 0.2 upon 10, minus sign of course, and you can easily get the answer. That's why the answer is bit lengthy. You can check here, 0.0004 Newton, and that to negative. Anyway, आई होप यू अंडरस्टूड इट. तो कन्वर्जन फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया. लास्ट पार्ट दैट व्हाट विल बी डिस्कसिंग टुडे इज नथिंग बट ये वाले क्वेश्चंस. कौन से वाले? ऑफ कोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले. ओके, तो लेट्स चेक दैट. 9.6 क्वेश्चन है. तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करना होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. वी नो दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. मतलब m1u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 प्लस m2 v2. तो इन दिस केस हमें 4 वैल्यू चाहिए होते हैं, 3 वैल्यूज नहीं, 4 वैल्यू चाहिए होते हैं. एक मास, कोई भी एक मास की वेलोसिटी, फिर दूसरा मास उसकी वेलोसिटी, ओके. सो मास 1 की v1 एंड मास की v2. देखो, तो इतने सारे वैल्यूज आई शुड बी सर्चिंग इन द क्वेश्चन. आई रिपीट अगेन. देखो, पहला मास हमें चाहिए m1 m2, ठीक है. देन आई नीड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 एंड देन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2. ओके, तो ये वैल्यूज है जो मुझे रिक्वायर्ड है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आई विल बी सर्चिंग ऑल दिस वैल्यूज. कन्वर्जन में करना है तो उसको मैं कन्वर्ट करूँगा एंड देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, चलो देखते हैं. तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ. देखते हैं. अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? देखो, दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय बोथ द वेज. वन बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू माइनस एस के हिसाब से कर सकते हो, या फिर यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, तो गन है, देखो गन है, गन से बुलेट निकल गई. ओके, तो व्हेन दिस इज बीन एक्चुअली फायर्ड, गन निकल गई, तो isn't it there is some velocity to this particular bullet with its mass, so that's all we call it as m1 m2, and same thing we have for this as well. okay, गन के लिए भी है. तो इन द बिगिनिंग स्टेजेस में हुआ क्या था कि दोनों जो है
रेस्ट पे है, मतलब गन जो मैं M1 कंसिडर करता हूँ, बुलेट को मैं M2 कंसिडर करता हूँ, तो दोनों जो है वो क्या है, रेस्ट पे है इन द बिगनिंग। तो u फॉर बोथ इज इक्वल टू 0, तो u1 इज इक्वल टू 0 एंड u2 इज इक्वल टू 0। लेट्स टॉक अबाउट v1, मतलब वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग। तो गन की जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग फाइंड करने वाले, रिकॉइल वेलोसिटी, तो ये फाइंड करना है। एंड v2 बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो क्लियर हो गया, राइट। बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास m2 इज इक्वल टू 20 ग्राम, तो इट इज़ 20/1000 kg। तो मास ऑफ हाँ ये 2 kg है। पिस्तौल का मास कितना है, m2, m1 इज इक्वल टू 2 kg। तो आई हैव all the values required except for this value which I can easily find out. चलो m1 u1 that means 2 into 0 plus m2 u2 that means 0 point whatever कितना है, 0.02 isn't it, 2 get cancel, 0.02 into 0 is equals to m1 2 into v1 वो मुझे फाइंड करना है, प्लस m2 0.02 into v2 is 150। फॉर्चुनेटली ये तो कैंसिल हो रहा है, तो आई गेट -2 v1 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, तो 300 हो जाता है 150 इंटू 2 एंड 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो रिकॉइल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। आंसर करेक्ट है क्या, देखते हैं। होप यस इट इज़। अभी ये नेगेटिव क्यों आया, होप यू गॉट इट। इट हैज़ कम नेगेटिव बिकॉज नेगेटिव आया, माइनस आया, ये देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको, तो माइनस आया बिकॉज रिकॉइल वेलोसिटी इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट, दैट्स वाई इट हैज़ कम नेगेटिव। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इन केस इफ यू डू इट बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन ये देखो कितना बड़ा कर दिया क्वेश्चन को अननेसेसरी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग फॉलो करेंगे एंड वी विल गेट इट डन, इजंट इट। बहुत सिंपल है, देखो बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि हमें कैसे यूज़ करना है इसको, बस दैट्स इट, थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.7, अ गर्ल ऑफ मास जो भी है, तो गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल जम्प्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब जो गर्ल है उसको हम लोग m1 बोलते हैं, इज इक्वल टू 40 kg। तो उसने क्या किया, जंप किया, मतलब उसका जो इनिशियल, आई कैन से इनिशियल जो वेलोसिटी है u, इट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, u1 हम लोग उसको बोलते हैं। ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, तो उसको उसने कार्ट हम लोग m2 बोलते हैं, कार्ट विद द फ्रिक्शनलेस व्हील, ओके उसको फ्रिक्शन कम है, मास जो है वो 3 kg का है। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी एज अ कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, assume that there is no external unbalanced force working in a horizontal direction, तो she jumped on it, राइट। कार्ट का u1 u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। देखो ये है इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन करो, फील करो उस एग्जाम्पल को, तो वो जो कार्ड दिख रहा है उस कार्ड के ऊपर शी जम्प्ड ऑन इट, उसको एक व्हील्स है, तो व्हील के ऊपर उसने जंप किया ना, तो बिगनिंग में तो ये इनिशियल वेलोसिटी इस व्हील की एंड इस कार की तो 0 थी। शी जम्प्ड ऑन इट विद दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी एंड नाउ बोथ आर मूविंग। बोथ आर मूविंग मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बोथ ऑफ दीज masses has got a same velocity. Okay, so I mean to say v1 is equals to v and v2 is also equal to v. ओके, बोथ हैव गॉट अ सेम वेलोसिटी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट मर्ज हो जाते हैं या फिर कंबाइन हो जाते हैं, तो कीप इन माइंड कि इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होती है, सेम हो जाती है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन यूज द क्वेश्चन एंड अपना वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एंड आई एम गोइंग टू गेट द आंसर। क्या है फॉर्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1
प्लस M2V2। एक क्वेश्चन तो 100% ये कॉमनली पूछते ही है। ओके, सो M1U1 मतलब 40 इंटू 5 प्लस M2U2, ऑफकोर्स ये 0 हो जाएगा तो 3 इंटू 0। M1 इज़ 40 इंटू V है प्लस M2 इज़ 3 अगेन इंटू V, एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। यू कैन इमेजिन दैट कार्ड भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिस डायरेक्शन में गर्ल मूव हो रही है। तो आई डोंट हैव टू चेंज द वेलोसिटीज डायरेक्शन और साइन। तो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 4 5 20, 200 is equals to 43V. So what is V is equals to 200 divided by 43, and that's the answer. Of course you can write it in the मीटर पर सेकेंड फॉर्म, बट उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा आंसर करेक्ट है क्या। यस, इट इज़ करेक्ट, 200/43 मीटर पर सेकेंड। यू कैन राइट इन डेसिमल फॉर्म, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, वो आपका काम है, मैं नहीं करूँगा वो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट, आई होप यू गॉट दिस क्लियर। ओके, उन्होंने भी बहुत कुछ किया हुआ है तो हम लोग उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। हम लोग एक ही चीज़ सोचते हैं जो हमारे पास है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग कंटिन्यूसली वर्क करेंगे एंड दैट्स इट। ओके, वही सब कुछ हमें ला के देगा। ओके, ये भी हम लोग करते हैं कंप्लीट। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट दे दो मुझे, बस मुझे ये अच्छा भाई इधर। ओके, तो इसको मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली became entangled. Became entangled means they form one. Okay, they become one. Entangled. Okay, one of mass मतलब हम लोग उसको M1 करते हैं। M1 60 kg was moving, U1 velocity is 5 meter per second, while other M2 55 kg and was moving with the faster velocity of U1 6 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity they will move after they become entangled? Entangled means they become one. ओके, वन हो गए मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी V1 होगी वो V होगी, एंड यहाँ पे V2 भी क्या होगा, V होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड अभी हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर। चेक करते हैं, कम ऑन। तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। तो M1 60 है, U5 है, M2 55 है, चेक कर लो, एंड U2 U2 6 है, M1 V है, ये मेरा V एंड U सब एक जैसा लग रहा है। M1 60 है, V प्लस M2 55 है एंड V, राइट। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो 60 इंटू 5 इज 30, 300, 330, राइट, एडिशन ये करेक्ट है क्या, राइट। तो इनका एडिशन होगा 630 डिवाइड बाई 115 इज इक्वल्स टू पी। जो स्पीड होगा वो ये होगा, राइट। अभी लेकिन यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ओके, तो लेट्स आइडेंटिफाई द मिस्टेक फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या मिस्टेक की है इसमें? हमने एक चीज़ मिस कर दी, वो है इन दोनों का जो स्पीड है वो इन अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। और ये मिस्टेक आप अगर आप लोग एग्ज़ाम में भी करोगे, आपको लगेगा कि आपने कर दिया, आंसर आ गया, लेकिन आंसर गलत होगा। ओके, सो कीप दैट इन माइंड कि अगर कोई भी अपोजिट डायरेक्शन दिखे तो उनका साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, यू अंडरस्टैंड इट। तो 6 को मैंने अगर नेगेटिव कर दिया तो ये देखो, तो बेसिकली ये 300 माइनस 330। आप बोलोगे यार ये तो नेगेटिव आ रहा है। येस, इट इज़ सपोज टू कम नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव आ रहा है मतलब 30 डिवाइड बाई 115 माइनस 30
इज इक्वल टू वी। ये रहा मेरा आंसर मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब इट विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर के डायरेक्शन में मूव हुआ, मतलब जो डायरेक्शन है वो बेसिकली निगेटिव आ रहा है। मतलब ये जो 55 वाला जो बंदा है, सेकंड प्लेयर वाला जो बंदा है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये दोनों मिलने के बाद भी मूव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? नहीं समझ में आ गया तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो -30/115 सेम है, राइट। अभी वो राइट लेफ्ट या कन्फ्यूजन हो सकता है, ये हम लोग आप लोग मिलेंगे ना, हम लोग टुमारो विल बी हैविंग द सेशन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको आइडिया तो आ गया, एक टिपिकल आइडिया आ गया एग्जैक्टली ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन हम लोग बस एज एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से कोई है तो देख लेते हैं एंड देन वी विल कंप्लीट दैट। ऑफकोर्स ये 7th क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज जो पुल करने वाला वैगन वाला फोर्स वाला जो क्वेश्चन है, ये हम लोग टुगेदर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सो डोंट वरी, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट टुमारो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। हॉकी प्लेयर का ही क्वेश्चन है, देखो। ओके, बुलेट का क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है। तो इट मीन्स देर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस कैटेगरी विच यू हैव टू यू कैन प्रैक्टिस। ओके, तो आज आप लोगों को करना क्या है, ये मैं बस वीडियो भेजता हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके रखो, सो दैट वेन एवर आई विल टेक द क्लास टुमारो वी कैन जस्ट क्लियर द डाउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कल ही। ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच। आज का काम आपका बस हो गया। बाय बाय, सी यू टुमारो।